رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد محمدا الذي كان صديقا في تصديقات عادلا في أحكام غنيا في أموال غنيا في درجات خاتما في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في تجليات زين العابدين بعبادات باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوال كاملا في جميع أحوال متمكنا في مقام الوداع جوادا كفه عند الواقع غياث المستغيثين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. آئیے میرا سب سے پہلے ادب کے ساتھ بلا تاخیر حضور پیغمبر اعظم سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مجلس آپ قابل مبارکباد اعتقاد کی اس وقت منبر نور پر آپ حضرات شان صاحب بغداد غوث الاعظم کانفرنس اور تحفظ نام سے رسالت کانفرنس میں آپ حضرات شرکت فرما ہے. منبر نور پر نقیب اہل سنت منور سیفی کی شاندار نقابت محسوس کر رہے ہیں. یہ بات انشاءاللہ العزیز ہندوستان کا خوبصورت لہجہ شہر اسلام زمزم فتح کا خوبصورت کلام سماعت کریں گے. ترکاشی کو آپ نے سن لیا ہے. منبر نور پر محترم شان علماء کرام تشریف فرما ہے. جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے جو اس وقت میری پشت پناہی کر رہے ہیں. اور پھر انشاءاللہ ہندوستان کا وہ انٹرنیشنل خطیب جس کے انتظار میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر ہی کے بعد ان کی آمد ہونے والی جن سے مراد غازی دورہ علامہ شاہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ تھوڑی ہی دیر میں آمد ہے. آپ انشاءاللہ اس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں. آپ کے مقصد کو پورا کیا جائے گا. بس کچھ دیر کے لیے آپ مجھے برداشت کریں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیرہ ہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلقہ آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلقہ آقا کہوں تجھے. شہنشاہ بغداد غوث الاعظم کانفرنس میں بیٹھنے والے مسلمانوں یاد رکھو رات کے اس وقت 11 بج چکے ہیں. غالباً 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے مگر جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری نگاہ پاک ہو رہی ہے ہمارا دل صاف ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے نہیں ہیں بلکہ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا اشارہ ہوا تب ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. یاد رکھو آپ نے اسی منبر نور سے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا کہ سرکار غوث الاعظم کا نام بندہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ ان کی مرضی شامل نہ ہو. بندہ نام اسی وقت لیتا ہے. سرکار غوث الاعظم کا نام اگر یا غوث المدد کہتا ہے تو یاد رکھنا غوث الاعظم کی مرضی شامل ہے تب ہم آپ اس کا نام لے رہے ہیں. ذرا اور پڑھو مسلمانوں بغیر نام کے جب غوث الاعظم کا بغیر ان کے مرضی کے جب آپ ان کا نام نہیں لے سکتے تو بھلا ان کے بغیر بلائے آپ ان کی مرضی کے خلاف ان کی محفل میں کیسے آ سکتے ہیں. دیوانے آئے ہیں یہاں اس لیے کہ بغداد سے اشارہ ہوا ہے تب آئے ہیں. دیوانے یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ غوث الاعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں. یہاں بیٹھنے والا دیوانہ یاد رکھو نہ مفتی سلمان اظہری کی محبت میں بیٹھا ہے نہ میری محبت میں بیٹھا ہے نہ منور سیفی کی محبت میں بیٹھا ہے نہ پھر زمزم فتح پوری کی محبت میں بیٹھا ہے. اگر دیوانہ بیٹھا ہے تو صرف اس لیے کہ غوث بغداد سے ہمیں محبت ہے شہنشاہ بغداد سے ہمیں محبت ہے. آؤ ذرا شہنشاہ بغداد غوث الاعظم کی ایک بات سماعت کر لو پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر میرے خطاب
किताब होगी फिर इंशाअल्लाह आपको खूबसूरत शायरी सुनने को मिलेगी। मेराज की रात है, रहमत की बरसात है, बुराक भी साथ है, जिब्रील अमीन है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में बुराक पेश किया जा रहा है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आप बुराक की सवारी करें, मेराज के लिए आपको ले जाना है। हबीब ने हबीब ने आपको बुलाया है, महबूब ने अल मुहिब को बुलाया है, एक आशिक ने आशिक के मुलाकात के लिए जा रहा है। बुराक पेश किया गया, जो ही आका इरादा करते हैं बुराक में सवारी होने के लिए, उस वक्त कोई और नहीं गौसुल आजम की रूह मुबारक को पेश की जाती है। सरकार बगदाद वाले गौसुल आजम की रूह मुबारक पेश की जाती है। अर्ज किया जाता है ये कौन है, ये किसकी रूह है? जब मैं अपने कदम को रखना चाहता हूँ बुराक पे तो ये किसकी रूह पेश की जा रही है? ये है कौन? गौसुल आजम की रूह पुकार उठती है, नाना मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर हूँ, नाना मैं आपका नवासा हूँ, नाना मैं आपकी नस्ल में से हूँ, नाना मैं आपकी औलाद में से हूँ, चाहते क्या हो? नाना अपने कदम नाज को बुराक पे रखने से पहले पहले मेरी पुश्त मुबारक पे रख दीजिए ना, मेरी पुश्त पे रख दीजिए ना। अगर आपके कदम नाज मेरी पुश्त मुबारक पे रख दीजिएगा तो ये बेटा अब्दुल कादिर जब दुनिया में जाएगा तो नेचरियत की खाली फिर करके रख देगा। जब दुनिया में जाएगा तो बदमज़हूबी किला कमा करेगा, दुनिया में जाएगा तो नामूसे रिसालत की हिफाजत करेगा, जब दुनिया में जाएगा तो मज़हब इस्लाम के अज़मत का झंडा गाड़ेगा, दुनिया में जाएगा तो अज़मत कुरान को बयान करेगा, दुनिया में जाएगा आपके किरदार और आपके अखलाक को बोलेगा, दुनिया में जाएगा या रसूल अल्लाह तो हमेशा आपकी अज़मत के डंके को बजाता रहूंगा। मुस्तफा ने अपने कदम नाज को गौसुल आज़म के पुश्त मुबारक पे रख दिया और रख करके ये ऐलान कर दिया, ए बेटा अब्दुल कादिर जा, आज मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, कल तेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पर होगा, कल तेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पर होगा। याद रखना मेरे प्यारे, गौसुल आज़म उस हस्ती का नाम है। अगर गौसुल आज़म याद रखना, किसी को अगर वली रहना हो तो गौसुल आज़म के कदम के नीचे रहना होगा, और अगर कोई वली हो और गौसुल आज़म के कदम के नीचे आने से इनकार कर दे तो विलायत छीन ली जाएगी, विलायत सल्ब कर ली जाएगी, वो वली नहीं रह सकता। यही वजह है जब गौसुल आज़म की मोहब्बत की बारी आई है, जब पूरी दुनिया ने अपना कलम बंद कर लिया, लिखने पे मजबूर हो गए, तब बरेली का एक कलंदर, बरेली का एक आशिक रसूल आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हम ये कुरान और सुन्नत मानिए कुफ्र दलालत, सच्चे रज़ा प्यारे रज़ा अच्छे रज़ा, हम सबके इमाम अहमद रज़ा खान बरेलियत की जान, आलिम मानी व बयान, मुफ्ती बातिल अदियान, शहंशाह मुल्क सुखल, शाने यार फिक्र फन, जब आला हज़रत बरेली के चटाई पर बैठकर जब कलम उठाते हैं तो यही लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे भाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या जबे जिसमें हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, हबीबी या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको सफे जो मेरा गौस है और याद ला बेटा तेरा। हाथों को उठाकर नारा रिसालत बशरे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा इकबाल अहमद मिसबाही जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मगर याद रखना मेरे प्यारे, इस दुनिया में जो भी आया है हमेशा हमारे असलाफ को इसलिए भेजा गया कि वो मजहब इस्लाम की खिदमत करे, उनकी कुर्बानियां मजहब इस्लाम की खिदमत में शामिल है। तब आज हमारे और आपके घरों तक मजहब इस्लाम पहुंचा है। जरा तारीख के हवाले से सुनो, और जब तारीख आप नोट करोगे आज के इस पुरफितन दौर में आप नहीं देखते हो कभी आवाजें उठती है कि कुरान को मिटा दो ताकि मुस्तफा की अजमत पे हमला कर सके। कोई ये कहता है कि उलमाए कराम को मिटा दो ताकि नबी की अजमत पर हमला कर सके। कोई ये कहता है कि कुरान की आयतों को बदल दो ताकि नबी की अजमत मिट जाए। कोई ये कहता है कि कुरान की आयतों को मिटा दो ताकि मुस्तफा की शान और शौकत न बयान की जाए, ताकि मुसलमान दबा दिए जाए, ताकि मुसलमानों की हस्ती इस वजूद से मिट जाए, ताकि मुसलमान और मजहब इस्लाम सबसे हस्ती से निस्तो नाबूद हो जाए। अब जरा देखो, एक पेड़ है, एक ही
पेज से 2 पेपर बनते हैं। पेपर बनता किससे है? आपने तारीख के हवाले से पढ़ा होगा। जनरल नॉलेज जब पढ़ोगे तो जब इस बात का आपको इल्म हो जाएगा कि पेपर और कागज किसी और चीज से नहीं बनाया जाता है, बल्कि दरख्त के पत्तों से और दरख्तों से बनाया जाता है। अब जरा देखो, दरख्तों काट लिए गए, काटने के बाद उससे पेपर बनाए गए। पेपर और कॉपियां और किताबें बननी शुरू हो गई। एक ही प्रेस है और एक ही प्रिंट है। जरा गौर करो, एक ही प्रेस में 2 तरह की किताबें छप रही है। एक वो किताब है जिस किताब में लिखी ये जाती है कि बच्चा नर्सरी से लेकर के LKG तक पढ़ता है, ABCDEFGH से लेकर Z तक। दूसरी किताब वो छपती है जिसमें बच्चा पढ़ता है अलिफ बा ता से लेकर के या तक। एक ही प्रिंट में, एक ही प्रेस में 2 किताबें छप रही है, ABCD से लेकर Z तक। दूसरी किताब आ रही है जिसमें अलिफ से लेकर या तक। मगर जरा गौर करना और जरा इन दोनों किताबों में फर्क देखो। इन दोनों किताबों के पढ़ने के बाद होता क्या है? मैं ये नहीं कहता कि मत पढ़ो, मगर देखो फर्क क्या होता है। एक बच्चा पढ़ा 1 से लेकर मैट्रिक तक, 10 प्लस 2 किया, BA किया, MSc किया, PD किया, MB किया, MBA किया, तमाम डिग्रियां हासिल कर लिया। इधर बच्चा डिग्री हासिल करते करते वक्त में वही बच्चा जिसने ABCD से शुरू किया था, कभी वक्त का IAS बनता है, कभी कलेक्टर बनता है, कभी PTO बनता है, कभी CO बनता है। मगर जब जिस बच्चे ने अलिफ से लेकर या तक पढ़ा था, जब इसको अल्फाज में तरतीब दे दी गई, तो जब आगे अल्फाज पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? आगे चल करके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यानी कि कुरान के बिस्मिल्लाह के बा से लेकर वन्नास के सीन तक पढ़ाया जाता है। प्रेस एक है, एक में ABCD छपी, दूसरे में कुरान की आयतें छपी गई। अब जो कुरान को जिसने ABCD पढ़ा वो वक्त IPS या IKS पढ़ा, मगर जो कुरान पढ़ा वक्त का मुजद्दिद बना है, वक्त का मुहद्दिस बना है, वक्त का गौस बना है, वक्त का कुतुब बना है, वक्त का अब्दाल बना है, वक्त का मुजाहिद मिल्लत बना है, वक्त का हाफिज मिल्लत बना है। फर्क ये करना है, एक IAS IPS बन जाने के बाद जब बच्चे के घर में वही किताब होती है ABCD वाली, तो किताब नालियों के कूड़े में फेंकी होती है, वो अल्फाज कहीं पर गिरे हुए हैं। वही नाली के कूड़े में किताबों को जो कोई चुनता नहीं है, कोई उठाता नहीं है, उस किताब की कोई अहमियत नहीं। जिसका पढ़ने वाला वक्त का कलेक्टर है, जिसका पढ़ने वाला वक्त का IPS है, जिसका पढ़ने वाला वक्त का BDO है, जिसका पढ़ने वाला वक्त का दारोगा है, मगर उस किताब की कोई अहमियत नहीं। मगर वह है मेरा कुरान। कुरान तो ऐसा है जिसे दुनिया मिटाने चली थी, मगर कुरान पे फतवा और मुजद्दिद वक्त नहीं दे रहा है। मुजद्दिद की ज़बान खामोश है, मुफस्सिर की ज़बान खामोश है, तफसीर करने वाले की ज़बान खामोश है, मुहद्दिस की ज़बान खामोश है, मुजाहिद की ज़बान खामोश है। मगर जब कुरान खोलने की बारी आ गई तो रब कहता है, ए मोमिनो याद रखो, जब तक तुम वज़ू ना बना लो तब तक तुम कुरान को छू नहीं सकते हो, जब तक कि तुम कुरान को छू नहीं सकते हो। अब इसी जगह से हमें सेहन ये मिल गया, अरे जब कोई मुसलमान होकर बेवजू नापाकी के हालत में कुरान को टच नहीं कर सकता, तो भला कोई वसीम रिजवी जैसा जाहिल काफिर साहिब कुरान को क्या छू सकेगा? साहिब कुरान के अजमतों पे क्या उंगलियां उठा सकेगा? जरा गौर करो, जब मोमिन मुसलमान जब तक पाक ना हो वो कुरान ना छूए, वो कुरान नहीं छू सकता। तो भला ये बदमज़हब, ये बदकाफिर भला जब जो जिंदगी भर जिससे निजासत और गलीज़ों में डूबा रहता है, वो साहिब कुरान को क्या छू सकेगा? वो साहिब कुरान की अजमतों की क्या बात करेगा? वो मुस्तफ़ा के हिफाजत और मुस्तफ़ा की ज़ात की क्या वो उंगलियां उठाएगा? वो उठा नहीं सकता है। इसलिए कि याद रखो, नबी कल भी शान वाले थे, आज भी शान वाले हैं। हमारे मुस्तफ़ा सुबह क़यामत तक के शान वाले हैं। सैयदुल अंबिया है, सैयदुल अबरार है। हजार कोशिश की गई और ये कोशिशें आज से नहीं चली आई है कि नामुस्से रिसालत पर हमला करो, मुस्तफ़ा की अज़मत पर हमला करो। सबसे पहले तो उन लोगों ने जब हमले का सिलसिला शुरू किया तो यूं ही नहीं किया है। लोगों ने इरादा बना लिया कि चलो चलकर उलमा को शहीद कर दो, मुमकिन है कि कुरान सफ़े हस्ती से मिट जाए। हुफ़ाज़े कुरान को शहीद कर दो, मुमकिन है कि कुरान सफ़े हस्ती से मिट जाए, नबी का वजूद खत्म हो जाएगा। कुरान को शहीद कर दो,
मुमकिन है कि नबी की हस्ती और वजूद मिट जाएगा जब ये कारी कुरान ना होंगे तो कुरान की तिलावत कौन करेगा, या हाफिज कुरान ना होंगे तो कुरान की तिलावत कौन करेगा। 1400 साल पहले की तारीख उठाओ, जंग यमामा में 70 कुरान को शहीद किया गया, इसलिए कि ताकि कुरान की असमत जब लोग भूल जाएंगे नबी की असमत को भूल जाएंगे। हीरे मऊना की तारीख उठाओ, 70 कुरान को शहीद किया गया, इसलिए शहीद किया गया ताकि मुसलमान सफ़े हस्ते से मिट जाए, और कुरान की असमत जब पामाल हो जाएगी, कुरान जब मिट जाएगा तो नबी की असमत पर हम उंगली उठा सकेंगे, मुस्तफा की शान को दबा सकेंगे। मगर बाहर मेरे खुदा इधर कुरान पे हमले हो रहे हैं, इधर हुफ़ाज़ कुरान को शहीद कर दिया जा रहा है, इधर कुरान को शहीद किया जा रहा है। अब कुरान अरब की घाटियों से निकलकर अमेरिका के वादियों में कौन लेके जाएगा, अब कुरान अरब की घाटियों से निकालकर इंडोनेशिया की वादियों में कौन लेके जाएगा, अब कुरान को अरब की घाटियों से निकालकर हिंदुस्तान के रास्ते से झारखंड की गलियों में कौन लेकर के जाएगा। पूरी दुनिया परेशान थी, मगर वो रब की शान है, वो रब की खुद किबरियाई है। जब रब देने पे उतरता है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को खुदा ने महज 3 महीने में हाफिज कुरान बना दिया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को जवान के जेल में खुदा ने महज 3 महीने में हाफिज कुरान बना दिया। अब तो बोलो मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। इमाम मोहम्मद को बचपने में जब उनके टाइम पीरियड को जोड़ा गया तो 7 दिन में खुदा ने उसे हाफिज कुरान बना दिया। मगर है आशिकों, सुन्नी शहीद अकीदा मुसलमानों, शाह अब्दुल अजीज को 3 महीने में हाफिज बनाया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को 3 महीने में हाफिज बनाया, इमाम मोहम्मद को 7 दिन में हाफिज बनाया। मगर वाहे मेरा परवरदिगार जब देने पे उतर आ गया तो बरेली के ताजदार, बरेली के कलंदर, सच्चे रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा को महज 3 घंटे में हाफिज कुरान बना दिया, महज 3 घंटे में हाफिज कुरान। आप लोग जो खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए, परेशानी होगी, बैठ जाइए। जरा गौर करो, महज 3 घंटे में सरकार आला हजरत को हाफिज कुरान बना दिया। लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो न जाने क्या क्या उंगलियां उठाई, मगर जरा गौर करो और करीब आकर के देखो, चेचनिया में 1,30,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया। जिम्मेवार कौन? तारीख उठा करके देखो, बर्मा की मुसलमानों की तारीख उठा करके देखो, वहां तहरीर किया गया। इंडोनेशिया में ईसाइयों ने न जाने कितने मुसलमानों को कत्ल किया, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान सबसे हस्ती से मिट जाएंगे तो खुद ब खुद कुरान उठा लिया जाएगा, खुद ब खुद कुरान मिट जाएगा। जब कुरान मिट जाएगा तो साहिब कुरान की अजमतों को दबाना आसान हो जाएगा, मुस्तफा की इज्जत और आबरू पर हमला करना आसान हो जाएगा, मुस्तफा के शान और शौकत को मिटाना आसान हो जाएगा, नबी की रिसालत पर उंगलियां उठाना आसान हो जाएगा, नबी की नबूवत पर उंगलियां उठाना आसान हो जाएगा, नबी के मोजज़े पर उंगलियां उठाना आसान हो जाएगा। सबने प्लानिंग कर ली, मगर तारीख उठा करके देखो, रब की किबरियाई भी कितनी बड़ी किबरियाई है, रब की शान देखो, खुदा की अजमत देखो। मगर जब लोगों ने ये प्लानिंग की कि अगर इस्लाम को मिटाना चाहते हो तो इन हुफ़ाज़ को मिटा दो, इन कुरान को मिटा दो, कुरान की अजमतों को जमीन के अंदर दफन कर दो, नबी की शान खुद ब खुद जमीन के अंदर दफन हो जाएगी। ये नापाक इरादा लेकर मज़हब इस्लाम पे हमला करना शुरू किया तो रब तबारक तआला ने पहली सदी हिजरी में उमर बिन अब्दुल अजीज को मुजद्दिद बना करके भेज दिया। जब और आगे हमला बढ़ा तो दूसरी सदी हिजरी में किसी और को नहीं, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई को भेज दिया। तीसरी सदी हिजरी में इमाम अबुल हसन अशअरी को भेज दिया। चौथी सदी हिजरी की तारीख उठाओ तो इमाम अबुल वफा को मुजद्दिद बना करके भेज दिया। पांचवी सदी की हिजरी उठाओ तो 5वीं सदी में इमाम ग़ज़ाली को भेज दिया। छठी सदी हिजरी में इमाम तक़ीयुद्दीन को भेज दिया। 7वीं सदी हिजरी में इमाम 6वीं सदी हिजरी से लेकर 7वीं सदी हिजरी की तारीख पढ़ो, इमाम तक़ीयुद्दीन को भेज दिया। 8वीं सदी हिजरी की जब बात आई, जब इस्लाम पर हमला हुआ तो किसी और को नहीं, इमाम ज़ैनुद्दीन अल-इराक़ी को भेज दिया। 9वीं सदी की हिजरी की तारीख उठाओ तो पता ये चलेगा कि रब ने किसी और को नहीं भेजा है, बल्कि अल्लामा इमाम
जलाल उद्दीन सयूती को भेजा है, 10वीं सदी हिजरी में मुल्ला अली कारी को भेजा है, मगर जब 4वीं सदी में दीन इलाही का झूठा दावेदार बनकर अकबर का सिलसिला पर सामने आया तो उसकी नकेल खींचने के लिए रब ने मुजद्दिद अल्फसानी को भेज दिया है। 12वीं सदी हिजरी में हजरत अल्लामा औरंगजेब आलमगीर रज़ियल्लाहु अन्हु को खुदा ने भेज दिया। 13वीं सदी हिजरी में हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को भेज दिया, मगर एक एक फितना आता था, मारने वाले आ जाते थे, एक एक फितना उभरता, मारने वाले आ जाते। अब तन के गोरे मन के काले हिंदुस्तान पे अमल करने वाले, तन के गोरे मन के काले 1857 से लेकर 1947 तक भारत को अपने कब्जे में रखने वाली ये ब्रिटिश हुकूमत ने या अंग्रेजों ने प्लानिंग की। अगर इस्लाम का खात्मा चाहते हो तो फिर एक तरफ से हमला मत करो, हम लोग चारों तरफ से भी होने चाहिए। इनके दरगाह भी खतरे में हो, इनकी मस्जिदें भी खतरे में हो, इनके खानका भी खतरे में हो। अब चारों तरफ से हमले शुरू हो गए, कहीं आवाज उठी कि ज़कात नहीं देंगे, जंग पर लड़ी गई, कहीं कभी फितना उठा मौला अली से दुश्मनी कर लो, उस पर सत्यपात किया गया। कभी फितना उठा उस्माने गनी को पूरा भला कहो, उसके सत्यपात के लिए उलमा आगे आ गए। कभी फितना उठा कुरान मखलूक है तो उसे दबाया गया। कभी फितना उठा कि औलिया इकराम के मुकद्दस मज़ारात को किया दो, उस पर फितना उठा। कभी फितना ये पैदा किया गया कि मज़ारात पे जाना हराम और शिर्क और बिदअत है, इस पर चल की गई। कभी फितना उठा कि नबी के तक़द्दुस और गुरबत खज़रा पे उंगलियां उठाओ। कभी फितना उठा नबी की साथ पर, कभी फितना उठा नबी की रिसालत पर, कभी फितना उठा नबी की तहारत पर, कभी फितना उठा मुस्तफा के नबूवत पर, कभी फितना उठा अहले बैत पर, कभी फितना उठा मौला अली पर, कभी फितना उठाया गया उस्मान गनी के नाम पर, कभी सिद्दीक के नाम पर, कभी उमर के नाम पर, कभी उस्मान गनी के नाम पर, कभी फितना शरीयत और तरीक़त पर। जब जाहिल पीरों ने फितना उठाया दुनिया हैरान हो गई। एक परवरदिगार फितना एक था तो मारने वाले कभी अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी थे, फितना एक था तो कभी औरंगजेब थे, फितना एक था तो मुजद्दिद अल्फसानी थे, फितना एक था तो कभी हजरत इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई थे, फितना एक था तो इमाम गज़ाली थे, फितना एक कुत्ता था तो मुल्ला अली कारी आ जाते थे। मगर कहाँ तो चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, कभी नबी की नबूवत पर, कभी नबी की ज़ात पर, कभी नबी की रिसालत पर, कभी नबी की शफ़ाअत पर, कभी कुरान पर, कभी अहले बैत पर। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं तो गुंबदे खज़रा से आवाज़ आई, हे मेरे उम्मतियों घबराते क्यों हो? 14वीं सदी के इन तमाम फितनों को दबाने के लिए मैं बरेली में एक कलंदर अहमद रज़ा भेज रहा हूँ। बरेली का एक कलंदर अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा इक़बाल अहमद मिस्बाही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली के कलंदर अहमद रज़ा भेज रहा हूँ, इसीलिए तो कहा मुल्के सुखन के शाही तुमको रज़ा मसल्ला जिसम आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। याद रखो मेरे प्यारे, हर ज़माने में नबी की नबूवत पर हमला हुआ है, कभी नाम से रिसालत पर हमला हुआ है, मगर इन पागलों को कौन समझाए जो रियाल और डॉलरों पे अपना ईमान बेचते हैं, कभी चैनलों के जरिए इस्लाम की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करते हैं। इन नादानों से कह दिया जाए नबी की शान ये है, अगर तुम वजू बनाओ तो तेरा जिस्म पाक होता है, अगर मुस्तफा वजू बनाए तो पानी पाक होता है, नबी वजू बनाए तो पानी पाक होता है। वो मेरे मुस्तफा की शान है। नबी की अजमतों को तुम कहां से मिटाना चाहोगे? याद करो बनी इसराइल का भी वो जमाना था जिन नादानों और जाहिलों ने कोशिश की थी। हजरत उस्मान गनी का जमाना है, कुरान की तरतीब देने की बात है। उस वक्त एक आयत थी, उस आयत को बदलने की कोशिश की गई, आयत ही नहीं बल्कि नुक्ते बदलने की कोशिश की गई थी। चूंकि जब हजरत मूसा और हजरत खिज़र के वाक़या को आप पढ़ेंगे तो हजरत मूसा और हजरत खिज़र एक किसी इलाके में जाते हैं, उनसे खाना तलब किया गया, लोगों ने इनकार कर दिया। तो कुरान में जो आयत है वो इनकार करने के माने में है, इनकार करने के माने में है। अब जब इन फितरों को और इन इसराइलियों को शर्म आने लगी कि हमने नबी को खाना नहीं दिया है, हमारी कौम के लोगों ने नबी को खाना देने से इनकार कर दिया, आने वाले जमाने में लोग हमें क्या कहेंगे? हमें लोग गालियां देंगे, हमें लोग बुरा भला कहेंगे, हम करें तो क्या करें? सारे लोग पूरी दुनिया
دنیا کی دولت لے کر اکٹھا کر کے دولتوں کا ذخیرہ لے کر امام کسی اور کے پاس نہیں سیدنا حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچتا ہے اور عثمان غنی کو پہنچ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ سے ایک کام ہے آپ چاہیں تو یہ کام ہو جائے گا عثمان غنی نے کہا کہ بولو کون سا کام ہے عثمان غنی جو سلامت کے تاجدار ہے عثمان غنی نام ان کا ہے کہ اگر جو سو جائے اور جانب مبارک سے اگر کرتا اٹھ جائے تو فرشتے آ کر ان کے دامن کو چھپا لیتے تھے ان کے جانب مبارک کو چھپا لیتے تھے کپڑا کرتا ان کا جانب مبارک سے نہیں اٹھتا وہ کہتے اس طرح سے اٹھ جائے تو مجھے حیا آتی ہے پورے اسرائیل بنی اسرائیل کے لوگ عیسائی خاندان کے لوگ ان کے پاس پہنچ گئے یہودی پہنچ چکے ہیں نصرانی پہنچ چکے ہیں کہا کہ کام کیا ہے کہا فقط ایک نقطے کو جو با کا نقطہ ہے اسے تا بنا دیجئے نا نیچے کا نقطہ اوپر نیچے سے اٹھا کر کے اوپر کر دیجئے نا عثمان غنی کے نمک اور عثمان غنی کی ایمانی خیرات دیکھ لے اور ان جاہلوں کو آج جواب مل جانا چاہیے عثمان غنی نے کہہ دیا نادان ہٹ جا ذخیرے اور دولت کی بات کرتے ہو پوری دنیا کے بھی دولت اگر قدموں میں ڈال دو تو قرآن کی ایک آیت کو بدل نہیں سکتا ہوں قرآن کے ایک نقطے کو نہیں ہٹا سکتا ہوں یہیں سے ذہن مل گیا جاہلو تم 22 آیتوں کو مٹا کر مصطفیٰ کے ناموس پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہو ارے جب کل تیرا باپ ایک نقطے کو بدل نہ سکا تو پھر آج تم اس کی اولاد ہو کر کے 22 آیتوں کو کہاں سے مٹاؤ گے کل تیرا باپ جب قرآن کی ایک آیتوں کو بدل نہ سکا ایک نقطے کو بدل نہ سکا ایک نقطے کو ہٹا نہ سکا یہ جاہل مردود قرآن کے 20 آیتوں کو بدل کر مصطفیٰ کی عزت و وقار پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ایسا ہونے دیں گے اس لیے یاد رکھو آج کے یہ جاہل اگر بنی اسرائیل کا اولاد ہے یہ علماء ہمارے عثمان غنی کی اولاد ہے یہ عثمان غنی کی اولاد ہے بنی اسرائیلیوں نے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یاد رکھیں مصطفیٰ کی عظمت پر انگلیاں کل بھی اٹھی تھی آج بھی اٹھائی جا رہی ہے مگر نہ کل کچھ ہوا تھا نہ آج کچھ ہوگا شرط ہے کہ ہم غوث اعظم سے محبت کر لیں بات میں نے غوث اعظم سے کی تھی اس لیے اب انتہا سرکار غوث اعظم پہ کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع اگر نظر آ رہا ہے تو غوث اعظم کی کرامت ہے یہ غوث اعظم کی کرامت ہے اب سارا مجمع پورے لوگ ہاتھوں کو ہٹا کر کہے کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں زور سے بولے غوث اعظم کے مرید ہیں وہ بغداد والے ہیں ہم یہاں نام لے رہے ہیں وہ وہاں سے ملازہ کر رہے ہیں ہم یہاں پکار رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ارے یاد رکھو جب بغیر مرضی کے ان کے کوئی نام نہیں لے سکتا تو بھلا بغیر ان کے مرضی کے کوئی ان کے نام سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے غوث اعظم کی بات ہے شریعت و طریقت پر چینلوں کے ذریعے جھوٹے علم بانٹنے والے جاہلوں اپنے چینلوں اپنے جاہل چینلوں کو اور ان پاکندیوں کو بند کرو کردار دیکھنا ہے طریقت کے حوالے سے تو غوث اعظم کا کردار پڑھو طریقت دیکھنا ہے تو غوث اعظم کا کردار پڑھو اگر کوئی اور بات دیکھنی ہے شریعت کے حوالے سے تو غوث اعظم کو پڑھ لو معرفت دیکھنی ہے تو غوث اعظم کو پڑھ لو کوئی اللہ چینل والا ابلیس کی ناجائز اولاد فرعون کا مجہول النسب کوئی اوپر بڑھ کر نبی کی عصمت اور بزرگوں کی شان پہ انگلیاں اٹھائے گا نہ کل برداشت کیا گیا تھا نہ صبح قیامت تک برداشت کیا جائے گا نہ صبح قیامت تک برداشت کیا نہ صبح قیامت تک برداشت کیا جائے گا اس لیے یاد رکھو اللہ چینل سے جتنے نشر و اشاعت ہو جائے گوبر کل بھی گوبر تھا اور صبح قیامت تک گوبر رہے گا وہ مردود الشہادہ کافر تھا کافر ہے اور کافر رہے
काफिर रहेगा। इसलिए कि हमारा मसलक गौसुल आजम का मसलक है, हमारा मसलक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मसलक है, हमारा मसलक वही है जो मुजाहिद मिल्लत का मसलक था, हमारा मसलक वही है जो हाफिज मिल्लत ने दिया है, हमारा मसलक वही है जो सरकार सदरुल शरिया ने दिया है, हमारा मसलक वही है जो मुफस्सिर आज़म ने दिया है, हमारा मसलक वही है जो मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया है, हमारा मसलक वही है जो बरेली के ताजुल शरिया ने दिया है, हमारा मसलक वही है जो मुतअद्दिद अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने दिया है। न कल हम इनका दामन छोड़े थे, न आज छोड़ेंगे, न सुबह क़यामत तक छोड़ेंगे। इसलिए मुसलमानों इस हवाले से याद रखें, आज की इस तारीख में यही मैसेज लेते जाओ, सबसे बड़ी और जरूरी चीज है आज के इस पुरफतन दौर में वो है ईमान। याद रखें, मन गलत तौहीद के दर्स देने वाले, याद रखें ईमान के लुटेरे घर घर घूम रहे हैं ताकि आपके ईमान का सौदा कर लिया जाए, ताकि आपके ईमान को लूट लिया जाए, ताकि आपके ईमान को छीन लिया जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब तक दुनिया में हो, आज की तारीख में सबसे बड़ा मुजाहिद वही है जो इस दुनिया से लेकर कब्र की दुनिया पे गया तो ईमान के साथ गया। जरा गौर करो इन बदबख्तों को कि कब्र में जाकर नबी को क्या हवाला दोगे, कब्र में जाकर मुस्तफा को अपना मुंह क्या दिखाओगे। इसलिए अपने अकीदे की हिफाजत करो, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनो। बात चल रही थी सरकार गौसुल आज़म की, हजरत इमाम अब्दुल्ला इब्न हजरत इमाम अब्दुल कादिर अल-इलवरी जो वक्त के कुतुब है, वक्त के वली कामिल है, सिलसिले सोहरवर्दी के इमाम हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को जिनके वो भतीजे हैं, हाथ पकड़ते हैं। दुनिया में बड़े बड़े सलासिल आए, जैसे कि सिलसिला चिश्तिया के इमाम किसी और को नहीं, सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को माना जाता है। उसी तरह से सिलसिले सोहरवर्द का इमाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को माना गया है। हजरत उनके चचे ने हाथ को पकड़ा, हाथ पकड़कर गौसुल आज़म की बारगाह में ले गए। गौसुल आज़म मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्यों लाए हो इसे मेरी बारगाह में, ये तो खुद पढ़ा लिखा है, ये तो पढ़ सकता है, ये तो जानता है, फिर लाए क्यों हो। फरमाते हैं हुजूर इसलिए लाया हूँ कि ये मेरा भतीजा है, इसलिए लाया हूँ कि ये मेरा बेटा है, पढ़ तो सब कुछ लिया है मगर लाया हूँ इसलिए ताकि आप थोड़ा इसे फायदा अता कर दीजिए, ताकि आपकी नजर इनायत हो जाए, ताकि आप इस पर करम कर दें, ताकि आपकी जूतों सखा की बारिश इन पर हो जाए। कदम को आगे बढ़ाया। सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं बेटा शहाबुद्दीन सब पढ़ कर आए हो, हाँ हुजूर सब पढ़ लिया हो, मंतिक पढ़ लिए हो, आप पढ़ लिया हो, फिलोसफी पढ़ लिए हो, आप पढ़ लिया हो, लॉजिक पढ़ लिए हो, आप पढ़ लिया हो, इल्म तफसीर पढ़ लिए, हाँ हुजूर पढ़ लिया, फिक़ह पढ़ लिया, आप पढ़ लिया, इल्म फिक़ह पढ़ लिया, आप पढ़ लिया, हदीस हाँ हुजूर पढ़ लिया, उसूल हदीस पढ़ लिया, हाँ हुजूर सब पढ़ लिया, जितने ज़ाहिरी उलूम थे सब पढ़ लिया। अब गौसुल आज़म ने सीने में हाथ फेर दिया, आज़म ने सीने में हाथ फेर दिया, सीने में हाथ फेर कर कहते हैं बेटा मंतिक तुम पढ़े हो, फलसफा तुम पढ़े हो, कुरान की तफसीर तुम पढ़े हो, हदीस तुम पढ़े हो, उसूल हदीस तुम पढ़े हो, बलागत तुम पढ़े हो, सब कुछ तुम पढ़े हो। अब एक सवाल करूं तो बताओगे, एक सवाल करूं बेटा बताओगे, जवाब सुनो। कहते हैं हुजूर आपने अपना हाथ जैसे सीने में फेरा न तो मेरे इल्म का सफाया हो गया है। अब सीना में कुछ नहीं है, सीना में कुछ नहीं है। इन जाहिलों को कौन समझाए जो नबी के असमत पर उंगलियां उठाते हैं और मुस्तफा की शान को ज़ेरे ज़मीन दफन करना चाहते हैं। अरे जब नबी के नवासे शहंशाह बगदाद गौसुल आज़म का आलम ये है तो जो सच्चतुल अंबिया है, जो सारे नबियों के नबी है, उनका आलम क्या होगा, उनकी बात क्या होगी। कहते हैं बेटा सवाल करूं, नहीं हुजूर सब चला गया, सब भूल गया, सीने में अब कुछ है ही नहीं कि मैं बता सकूं, सीने में कुछ याद नहीं है। गौसुल आज़म मुस्कुराते हैं, कुतुब रब्बानी मुस्कुराते हैं, शहबाज़ लमकानी मुस्कुराते हैं, महबूब सुब्हानी मुस्कुराते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराते हैं। फरमाते हैं बेटा कुछ याद नहीं है, हुजूर कसम से कुछ भी याद नहीं है। आपने इधर हाथ फेरा, इल्म का सफाया हो गया। फरमाते हैं बेटा घबराना मत, बेटा परेशान ना होना, बेटा रोना मत। जब तख्ती पे कोई नई बात लिखनी हो तो दिल को सफाया
کیا جاتا ہے، جب ترتیب پہ کوئی نئی بات لکھنی ہو تو علم کا صفایا کیا جاتا ہے، جب ترتیب پہ کوئی بات لکھنی ہو تو دل اور قلب کو صفایا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آپ حضرات کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کر لیجیے، میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔